जी। 2017-18 में एक बर्दवान में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था और हुँ, उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए वाज डूइंग। हिज नेम वाज मोहम्मद खालिद। तो हुँ, मैंने अखबार में पढ़ा कि देयर इज अ रोहिंग्या और ही वाज अरेस्टेड बाय एनआईए। और शायद मुझे याद आया कि उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था एंड आई रेज्ड अ रेड फ्लैग टू द यूएन टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट केस। हुँ, और पूरा दिल्ली के राइट्स में हु वर इन्वॉल्व? These Rohingyas were involved. These Rohingyas were called from Rohingya settling places in Delhi from हुँ, UP. They were paid to sit in the rights for so many days, especially from Jamia and Okhla. Who was हुँ। funding them? There are NGOs, I don't want to name them. Government no, and they have already taken action. Namaste Bhakto, welcome to Bhakt Charitra, a Bhakts.com podcast. This is not just a show, it's a sacred space where we bring forth voices that don't merely believe in Sanatan Dharma, Hindutva, and Akhand Bharat, but they actively live by these values and work to protect our society, culture, and nation. It's a platform for those who embody Dharma in thought, word, and action, individuals who defend our civilization's value not just in headlines but in everyday life. So my first interaction with Pankaj ji happened through our Twitter handle bugs.com, and I was looking through people's profile and I found ki Pankaj ji is silently doing something great. We discussed over phone many times, and I found कि there is a big story to talk about. पंकज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे भक्त चरित पॉडकास्ट में। Namaste, Himanshu ji. जी। तो हम शुरुआत पहले आपसे ही करते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आपका पूरा नाम? Himanshu ji, thank you for inviting me in this particular podcast. और मैं आपके हैंडल को फॉलो किया और मुझे लगा कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। नॉट मेनी पीपल डू सेल्फलेसली, आई मीन लोगों को जागरूक करना फॉर धार्मिक कॉज एंड फॉर नेशनलिस्टिक कॉज। रोज़मर्रा के काम के अलावा लोगों को समय निकालना ये काफ़ी बड़ी बात है। सो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। So that is why I thought to interact with you, and thank you again for giving me an opportunity in your platform. Well, as you know that my name is Pankaj Singh, and I am from Bokaro Steel City in Jharkhand. So I was born there, and I grew up. I have studied till class 12th in Bokaro. Thereafter, I went for my studies in law in Bhopal. So I did my law from National Law School in Bhopal, and that was in 2000 and I think one. So I passed out in 2006. Thereafter, I went to France for my further studies to pursue my masters in law. So after that, I started working with United Nations system. So I worked briefly with High Commissioner for Human Rights Office in Geneva, and after a break of 2 or 3 years, I returned to UN system. I was working in Hague in the Netherlands, that is International Criminal Tribunal for ex-Yugoslavia and Rwanda. Thereafter, I moved to Mexico and I had some businesses. I left the UN work for some personal reason. उसके बाद again I returned to India and I started working with United Nations High Commission for Refugees. It was in 2013 और 2013 के बाद मैं काम किया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इन दिल्ली 2016 तक। 16 के बाद I was deputed for an international post as an expert with the same organization UNHCR in Africa Bureau. ये खत्म हो गया 2019 में। 2019 आई रिटर्न बैक टू इंडिया और मुझे लगा कि मैं अपने देश के लिए काम करूं, अपने लोगों के लिए काम करूं। और उस समय नई सरकार भी बनी थी और काफ़ी युवा
सरकार का जो एजेंडा था उस समय 2019 में, तो काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिला। हम्म, तो आप आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मेरा लिखने पढ़ने का भी काम स्टार्ट हुआ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि सबसे पहले बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था 2019 में। हम्म, तो 2019 में मैं पोस्ट पोल वायलेंस में जितने जो भी हुआ वो सबको, सारे भारत के लोगों को पता है। काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे जो बंगाल में हिंसा हुई, और काफ़ी लोगों को असम में पलायन भी करना पड़ा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले तो एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को चिट्ठी लिखा। जो भी फील्ड में या ग्राउंड में लोग थे, मुझे इन्फॉर्मेशन दिया फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं ऐसे ऐसे जगह में बंगाल में। हम्म, उन सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने कोलेक्ट किया, और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एनएचआरसी को भेजा, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उन सारे कंप्लेंट को संज्ञान में लिया, और एनएचआरसी ने टीम बनाया, और एनएचआरसी की टीम बंगाल में गई। वहीं से ये बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस में जितने भी लिटिगेशन हुई, चाहे हम्म, बंगाल में हुई चाहे असम में भी हुई, एक आध केस मैंने भी फाइल किया था बंगाल में, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बंगाल टू हम्म, असम, इवन दो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी मंथ। तो मैं चाहता था कि उन लोगों को असम सरकार बंगाल फोर्सफुली ना भेजे, उनको टेम्परेरी शेल्टर दे, उनको सुरक्षा दे, और उनको सम्मानपूर्वक उनको वापस किया जाए, ना कि दे शुड बी फोर्सफुली रिटर्न, दे शुड वॉलंटरली रिटर्न। तो हम्म, इसमें मैंने एक पीआईएल भी फाइल किया असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 ऑनवर्ड्स। ओके। हम अपना डिटेल इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, फैमिली का वातावरण कैसा था रिलेटेड टू धर्म, धार्मिक एक्टिविटीज, एंड व्हाट वाज योर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, लाइक समबडी फ्रॉम योर फैमिली, सोसाइटी। तो कुछ इस बारे में बताइए, कैसा आपका अपब्रिंगिंग कैसी रही? हाँ, तो although I studied in a English medium private school, and it was an elite school in Bokaro, and still it is one of a prominent school in entire Jharkhand। ओके। उसके बावजूद जिस परिवेश में मैं रहा अपने माता पिता के साथ, तो आई यूज्ड टू विजिट टेम्पल्स स्पेशली विथ माय मदर। माय मदर वाज अ शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट शी वाज अ शिव भक्त। तो काफ़ी शिव चर्चा होती थी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, मंदिर जाता था। पिताजी और अपने माताजी के साथ काफ़ी तीर्थ स्थल भी गया, जिसमें ज्योतिर्लिंग है। तो इससे मुझे लगा कि भाई धर्म के लिए भी कुछ करना चाहिए। जी। तो हिंदू धर्म के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी लोगों को करते हैं, सिर्फ टेम्पल विजिट करना इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर धर्मा, हम्म, but you have to work for the people who abide with the religion, to protect the religion। प्रोफेशन तो हमें आपका समझ में आ गया कि बाय प्रोफेशन यू आर अ लॉयर। जी। आपने लॉ की ही पढ़ाई की है। तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिस जो सुन के मुझे भी अच्छा लगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगा कि आपने इतना बड़ा इंटरवेंशन किया, आपने इतना बड़ा काम किया है। जो रोहिंग्यास का जो इलीगल माइग्रेशन है, उनका सेटलमेंट है, उसके लिए आपने जो आवाज़ उठाई और आप मतलब कहाँ से शुरुआत की, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि ये रोहिंग्यास वाला मुद्दा कैसे आया आपके पास, आपने कैसे शुरुआत की, आपको क्यों लगा कि इसमें करना चाहिए कुछ? मैं थोड़ा रोहिंग्या के बारे में हिस्ट्री बताना चाहूँगा, जी। विद इन जस्ट वन लाइन, कि रोहिंग्या का जो इशू है भारत में कोई नया नहीं है। लोगों को पता चला बाद में। हम्म, रोहिंग्या भारत में 1947 से आ रहे हैं। 1947 में आए, हम्म, इनफैक्ट मोर इन 1948। अच्छा। बॉर्डर पोरस है, आपको पता है। दे हम्म, ऑल गॉट सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड पर्टिकुलरली इन कश्मीर। और कश्मीर में, 47 they started shifting to Kashmir. यस, Okay. 47 48, हम्म, एंड दे
intermingled with the society and they married Kashmiris. मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा because Hmm. when I was working with UN office in Delhi, Hmm. I got lot of Rohingyas. Of course, they were Bengali speaking Muslims. Hmm. They claimed that they came in 1948 to India and they are living in Kashmir since 1948. Two or three generations have passed. Now they registered themselves with, they wanted to get registered themselves as an asylum seeker with UNHCR. तो Hmm. मैंने पूछा कि आपके पास तो भारत का पेपर वगैरह होगा ही, तो why you want to become asylum seeker now? You have been living in India since 1948. तो Hmm. उन्होंने कहा कि उनके पास पेपर नहीं है, भारत सरकार का कोई कागज नहीं है। तो मैंने मांगा भी नहीं क्योंकि यूएनएचसीआर का मैंडेट नहीं होता है जब वो रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं कि कोई पेपर जमा करो। ये सबसे बड़ा यूएनएचसीआर का आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन में एक फ्लॉ है, लूपहोल है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हुआ तो मुझे पता चला कि 1948 में दे आर द रोहिंग्याज एंटर्ड कश्मीर एंड दे वर स्पीकिंग फ्लुएंटली हिंदी, बंगाली और बंगाली डायलेक्ट जो था वो चिटागोनियन डायलेक्ट था। उनके पास पेपर भी था म्यांमार का, जो अगर ट्रेस किया जाए फैमिली मेंबर्स दे वर लिविंग इन म्यांमार। उसके बाद एक नया इन्फ्लो आया 1978 में, जो जिसमें रोहिंग्या भारत आए। उसके बाद एक दौर आया आपका 1991 में। उसके बाद आया 2010 में। Okay. 2013 में मैं इन्हें यूएनएचसीआर ज्वाइन किया। Hmm. रोहिंग्या केस लोड पे मैंने काम किया, अलग अलग केस लोड के साथ, लाइक अफगान्स एंड अदर नेशनैलिटीज, गिविंग देम रेफ्यूजी स्टेटस बेस्ड ऑन देयर क्लेम। और मेरा जो मुख्य कार्य था यूएनएचसीआर में, टू टू assess their credibility based on their documents और their story और their claim, कि भाई जो बोल रहे हैं उनका क्लेम में कितना सच्चाई है, और अगर क्लेम में सच्चाई है तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए या डिसमिस किया जाए। Hmm. ठीक है, तो 2013 में मुझे रोहिंग्या के बारे में मुझे पता चला, बट भारत सरकार को 2013 से पहले भी पता था। फर्स्ट टाइम 2013 में भारत सरकार का एक गाइडलाइन आया कि रोहिंग्या शुड बी ट्रीटेड, रोहिंग्या को लॉन्ग टर्म वीजा मिलना चाहिए। Okay. भारत सरकार जो एफआरआरओ है 2013 तक उनको लॉन्ग टर्म वीजा देती थी। Hmm. ये गाइडलाइंस आपका एमएचए के गाइडलाइन, एमएचए का वेबसाइट में अभी भी है। 2013 में काफी लोग आए और मैंने दो तीन या दो तरीके या तीन सेट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी से मिला। एक तो Hmm. 1948 में जो क्लेम करते थे उनसे मिला, एक रोहिंग्या जो बांग्लादेश में लगभग 20 से 25 साल रहे हैं और शायद उनके पास बांग्लादेशी कागज भी होगा, Hmm. and there is a possibility that they married to Bangladeshi citizen, like a Rohingya male Hmm. getting married to a Bangladeshi female and Hmm. vice versa। Hmm. तो आप देखिए कि कितना सिचुएशन ये कॉम्प्लेक्स हो गया। भारत सरकार के मैंडेट में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज नहीं आते हैं, भारत सरकार उनको मान्यता नहीं देती है, भारत सरकार मान्यता सिर्फ आपको तिब्बतियन को देती है। Okay. ठीक है, अब क्या हुआ कि बांग्लादेशीज तो ऑलरेडी दे आर ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट, बट Hmm. यूएनएचसीआर का मैंडेट है कि रोहिंग्याज आर स्टेटलेस, दे आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ म्यांमार। तो उनको आप सिटीजन, उनको आप रिफ्यूजी स्टेटस दीजिए एंड दे मे बी अलाउड टू लिव इन इंडिया, बिकॉज यूएनएचसीआर हैज साइंड वन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप बताइए कि अगर एक फीमेल रोहिंग्या इज गेटिंग मैरिड टू अ बांग्लादेशी मेल, Hmm. तो अब यूएनएचसीआर क्या करती थी कि फैमिली को सेपरेट नहीं करती। ठीक है, तो अगर Hmm. फीमेल को आप रिफ्यूजी स्टेटस दे रहे हैं, फीमेल रोहिंग्या को, तो आपका जो मेल, उसका जो हस्बैंड है जो बांग्लादेशी है, उसको भी देना पड़ेगा, Hmm. और वाइस वर्सा। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ। ये 2013 में हुआ, 2014 में भी काफी सारे रोहिंग्या आए, 2016 में भी आए। रोहिंग्यास का जो आना जाना भारत में रहा वो काफी हुआ।
और हम्म, एक बात और मैं बताऊंगा कि रोहिंग्या का इन्फ्लो बढ़ता क्यों था इंडिया में, हम्म, क्योंकि इंडिया को एक सेफ हेवन रोहिंग्या ने समझा, क्योंकि उनका क्लेम था कि दे वर इवन नॉट सिक्योर्ड इन बांग्लादेश बिकॉज दे वर फेसिंग आर्बिटरीली दे वर अरेस्टेड इन बांग्लादेश। और इंडिया से वो बॉर्डरिंग कंट्रीज जाते थे, सम वेंट टू पाकिस्तान ऑल्सो, आई नो, सम वेंट टू अफगानिस्तान ऑल्सो, फ्रॉम इंडिया दे वेंट बैंक टू दे वेंट टू कैलकाटा, और कैलकाटा के बाद वो थाईलैंड चले गए। तो इंडिया में से रीसेटलमेंट का प्रोस्पेक्ट्स वेरी हाई था। मतलब कि यूएनएचसीआर कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है और देखती है कि इफ दे आर बीइंग आर्बिट्रेरली अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर भारत सरकार उनको प्रोटेक्शन नहीं देती है तो उनको थर्ड कंट्री में सेटल करती है। थर्ड कंट्री मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज लाइक हम्म, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ऐसे ऐसे केस लोड से मैं देखा। जी, 2017-18 में एक बर्दवान में बम ब्लास्ट हुआ था, और हम्म, उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए वाज डूइंग। हिज नेम वाज मोहम्मद खालिद। तो हम्म, मैंने अखबार में पढ़ा कि देयर इज अ रोहिंग्या और ही वाज अरेस्टेड बाय एनआईए, और शायद मुझे याद आया कि उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था। एंड आई फाउंड हिज ट्रैवलिंग इन इंडिया क्वाइट सस्पिशियस, एंड आई रेज्ड अ रेड फ्लैग टू द यूएन टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट केस। तो 2019 में मैं कुछ संपर्क में आया लोगों से जो काफी लिखते थे 2019 में अगर अगेंस्ट रोहिंग्या। उस वो समय में 2019 में भारत की सरकार, जो आज की मौजूदा सरकार है, रोहिंग्या विषय में बात करने लग गई। काफी सारे एनजीओ भी बात करने लग गए। उसी वक्त एक एनजीओ से मेरा कनेक्शन हुआ। दे फाउंड माय ट्विटर हैंडल, आई आल्सो फाउंड देम राइटिंग अबाउट रोहिंग्या इश्यूज इन दिल्ली, मोर पर्टिकुलरली इन यूपी, मोर पर्टिकुलरली। हम्म, ठीक है, तो मेरा उनके साथ एक संबंध बना। उस संबंध में मैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के लोगों से मिला। वहाँ के कुछ जो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के जो संचालक है, उनके मार्गदर्शन में मैं इस विषय में काम करना चालू किया। हम्म, उसके बाद आगे एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हम्म, मैंने मोहम्मद सलीमुल्लाह का पिटिशन ये था कि 70 रोहिंग्या उस समय डिटेन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, हम्म, और इनका पिटिशन में प्रेयर था सुप्रीम कोर्ट में कि दे शुड नॉट बी डिटेन्ड, दे शुड नॉट बी डिपोर्टेड बैक टू म्यांमार, इनफैक्ट दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद द इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 21 का हवाला देके उस हम्म, पिटिशन को मैंने डॉक्यूमेंट अपने सारे, जो भी मैंने आपसे इस विषय में बात किया, जो भी यूएनएचसीआर का जो मैंडेट है जिसमें फ्लॉज है, लूपहोल्स है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो सारा लिख के मैंने कोर्ट में पेश किया, और भारत सरकार को मैंने मदद किया एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उनका डिपोर्टेशन होगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद। उसके बाद हम्म। आज तक वो केस पेंडिंग है, और उसके बाद लॉट ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड बाय रोहिंग्यास इन द सेम इशू सिंस 2019 टिल 2025, एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। वेरी गुड, मतलब काफी कुछ सुनने को मिला, समझ में आया। मुझे लगता है कि शायद ये बातें अभी तक शायद पब्लिक डोमेन में या जनरल पब्लिक को नहीं पता है कि रोहिंग्यास का जो सेटलमेंट है या इनफ्लो है वो आज से नहीं है, 47 से है। और आपने एक पूरी हिस्ट्री बताई है कि 1947 48 से लेके 2014 तक, इनफैक्ट अभी आपका रिसेंटली भी ये कैसे इलीगल सेटलमेंट और इनफ्लो हुआ है। तो ये जो रोहिंग्यास का इशू था ये आपके पास कैसे आया था? जैसे आपने बताया कि आपने यूएन में जॉब शुरू किया था, तो आप पहले से ही इस पर काम कर रहे थे या ये यूएन में जॉब के थ्रू के समय आपको पता चला कि ये जो है एक बड़ा चैलेंज है या आपने इस पे काम शुरू किया? रोहिंग्या इश्यूज पे काम मैं यूएनएचसीआर मैंडेट में 2013 से कर रहा हूँ, ओके। इन विद द यूएनएचसीआर मैंडेट, हम्म, जहाँ पे मेरा डायरेक्टली रोल था उनके उनका इंटरव्यू लेना, और ओके। उनका क्लेम को असेस करना, और मुझे आइडेंटिफाई और वेरीफाई करना था
कि क्या ये रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी है। आइडेंटिफिकेशन बिटवीन रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर एंड इंटरमिंगलिंग बिटवीन द टू एथनिक ग्रुप, हम्म, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट यूएन, तो हम्म, काफ़ी सारा लूपहोल्स जो मुझे लगा यूएन के आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन सिस्टम में है, जो वो लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के लॉट ऑफ बहुत सारे बांग्लादेशी भी रिफ्यूजी स्टेटस ले लिए रोहिंग्या के आड़ में, बिकॉज दे वर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द रोहिंग्यास। और ये भी लगा कि इवन कुछ रोहिंग्या जो हैं, दे आर इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज इन इंडिया। सम आर मेंबर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन यूएनएचसीआर करती नहीं थी। तो ये सब इशू को मैंने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के माध्यम से लोगों के सामने लाया, कोर्ट के सामने लाया, और अपने बाय माय आर्टिकल्स आई रिप्रेजेंटेड बिफोर द पीपल। तो मुझे ये समझ में आया कि एक तो आपने ये बताया कि रोहिंग्यास का जो इशू है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, वो 1947 से आ रहे हैं, और दूसरी बात वो बांग्लादेशियों के साथ जो है वो इंटर मैरिज होने के बाद जो है उनका वो पूरी तरीके से जो है उनका स्टेटस मिक्स हो गया है। बिल्कुल। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि आप ये कह रहे हैं कि यूएन में जो काम था वो ये काम था कि रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करना था और उनको रिफ्यूजी स्टेटस देके सेटल करना था इंडिया में। ये बिल्कुल। यू यूएन का मैंडेट ये था। जी। और आपको उसमें समझ में आया कि इसमें कई सारे लूप होल्स हैं और ये गलत है, क्योंकि ये कई लोग इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और इनको रिफ्यूजी स्टेटस देना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। दिक्कत ये बात की है कि यूएनएचसीआर का मैंडेट ये भी है कि वो सारा डेटा और सारा इंफॉर्मेशन शेयर करेगी भारत सरकार से, अच्छा। लेकिन वो करती नहीं थी, ओके। बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। वो कहते थे कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमारे मैंडेट का है, तो वी विल नॉट शेयर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई रेज्ड अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स अगेंस्ट हम्म। रोहिंग्यास। तो ये रही कहानी कि आपको यूएन में तो आप मतलब आपको वो टास्क दिया गया था, फिर आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, और फिर आप यूएन की जॉब से बाहर आए और आपने इंडिपेंडेंटली इस इशू पे काम करना शुरू किया, गवर्नमेंट को बताना शुरू किया कि इन जिन रोहिंग्यास को हम लोग रिफ्यूजी स्टेटस दे रहे हैं या जो भारत में रह रहे हैं, एक तो वो कॉम्प्लेक्स कितना हो गया है और ऊपर से वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा कितना ज़्यादा है। बिल्कुल। आपने फिर वो आपने उसके अगेंस्ट मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जो है इस इशू को एड्रेस करना शुरू किया गवर्नमेंट को अपने तरीके से। बिल्कुल, आप मैंने इतना तक इन्फॉर्मेशन दिया, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया था जब मैं यूएन में काम करता था 2013 से लेके लगभग 2016 तक, और रोहिंग्या केस लोड में ही। तो ये भी मुझे पता चला कि सहारनपुर मदरसा में जो रोहिंग्या आते थे, तो हम्म, सहारनपुर जितने भी आप मदरसा देखेंगे यूपी में, सारे लोग वहीं पे पढ़ते थे, और उनका ब्रेन वॉश होता था। हम्म, और सबको मालूम है कि हाउ सहारनपुर मदरसा जितने भी हैं वहाँ पे, हाउ पीपल आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड टू वर्क अगेंस्ट भारत। तो फिर जब आपने ये यूएन का जॉब छोड़ा और आपने बताया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर ये आपने अपने लेवल पे कैसे शुरू किया? आप कह रहे थे कि मेरे लिखने की शुरू से आदत थी, तो वो आपने मतलब लिखना और ये अपना आपका जो एक्टिविज्म था एज एन इंडिविजुअल, वो कैसे शुरू किया, मतलब क्या किया आपने उसमें? बहुत सारा इशू है। पहला तो एक रोहिंग्या का ही इश्यूज है, जिसमें मैं एक एनजीओ के साथ मैं मिला। एनजीओ के साथ मैं मिला, उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के संपर्क में आया। उन्होंने कहा कि आप जो भी आपको पता है उस पे एक डॉसियर लिखिए, हम्म, जो भी हाइलाइटिंग द लूपहोल्स इन द इंटायर यूएनएचसीआर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, and by citing examples, हम्म, and in a legal point of view, how they cannot settle in India, and in any way रोहिंग्या का डिपोटेशन होना है। तो हम्म, वो मैंने डॉसियर दिया जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर को। हम्म, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से वो डॉसियर भारत सरकार तक पहुंची। एक ऐसा भी मौका आया कि मैं भारत सरकार के कुछ
अधिकारियों से भी मिला अच्छा। और अपना डोसियर दिया उनको, और जो भी इस विषय में जानकारी मुझे देनी थी मैंने दिया। जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैं तो था ही, हम्म। जिसमें मैंने जो पिटिशन फाइल हुआ था, बहुत सारे पिटिशंस रोहिंग्या के अगेंस्ट, रोहिंग्या कम्युनिटी ने जो फाइल किया, हम्म। filed by a particular ecosystem, and that ecosystem is comprised of some elite lawyers, some elite journalists, हम्म। and I stood against that ecosystem together with with the government by submitting my dossier, by submitting my information, by submitting my petition, जी। stating that these Rohingyas should not be settled in India, but in fact they should be deported after identification and verification. Because I never wanted कि इसमें कोई गलत आदमी का भी डिपोटेशन हो जाए। हम्म। तो फिर इसका रिजल्ट क्या रहा आपके डोसियर का? रिजल्ट यह है कि डॉसियर का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट, जो भी परिणाम आया कोर्ट का, जी। और जो मैंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा, काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, काफ़ी इंटरव्यू भी दिया हम्म। इन डिफरेंट मीडियम्स, हम्म। कि लोग अब जानने लग गए हैं हु आर रोहिंग्यास। और एक इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे कार्य से प्रभाव पड़ा है, बट आप देखेंगे कि अब भारत सरकार भी जागरूक हो गई है। जी। भारत सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है घुसपैठिया। आप हम्म। सुनेंगे झारखंड में भी अभी चुनाव हुआ था, झारखंड में भी अगर वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी आज है, हम्म। उनका भी सबसे बड़ा एजेंडा यही था, टू डिपोर्ट दीज रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशी। एक डेमोग्राफिक चेंज आया है, लोग अब बात करने लग गए हैं, महसूस करने लग गए हैं, एंड इट इज हैपनिंग इन द इंटायर इंडिया, नॉट ओनली इन द स्टेट that are governed by a particular party, like for example BJP, but in all the states। दिल्ली में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, झारखंड सरकार ने एक्शन लेने से मना कर दिया, हम्म। जबकि केंद्र सरकार ने बोला था और एविडेंस भी दिया था। झारखंड सरकार ने मना कर दिया। इनफैक्ट झारखंड गवर्नमेंट चैलेंज्ड this entire identification and verification process and the direction of the Ministry of Home Affairs in the Supreme Court of India। कर्नाटक में आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, असम में अभी देख रहे हैं कि एवरी डे लॉट ऑफ बांग्लादेशीज एंड लॉट ऑफ रोहिंग्यास आर बीइंग डिपोर्टेड। अब उनको डिटेन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप डिटेन करेंगे तो आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप देम इन द डिटेंशन सेंटर एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद मांगे बढ़ेंगी कि भैया इनको आप फ्री फूड दो, फ्री खाना दो। तो अब जो भारत सरकार का जो 2025 हम्म। मार्च से जो रवैया है, वो बिल्कुल सही है कि उनको अब डिटेन नहीं करना है, फ्रॉम द बॉर्डर दे शुड बी डिपोर्टेड। तो हमें ये समझ में आया कि आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बड़ा है और इससे अवेयरनेस भी आई है। आंतरिक सुरक्षा, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिला होगा आपकी इस रिसर्च से, क्योंकि आप पहले एक साइड में तरफ थे, वहाँ से आपको इश्यूज पता चले, आपने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया, डॉसियर बनाया, गवर्नमेंट को शेयर किया। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। आई मीन वी ऑल शुड नो ऑल दिस कि कितना बड़ा इशू है और इसके लिए कितने लोग अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। At least now the government know the modus operandi, who are the people behind them। जी। There is a ecosystem, हम्म। and who are the smugglers who are being benefited, कौन है who are doing, there are people who are directly involved in human trafficking। You know हम्म। that human trafficking and smuggling is a very big business। यस। जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इशू पे आते हैं, जो हमारी बातचीत हुई थी कि कहीं ना कहीं ये सी ए ए एफ सी आर ए और हिंदू रिफ्यूजीज के लिए आपने कुछ काम किया है, और यहाँ पे भी वही रोहिंग्या का भी कुछ लिंक है, और आपने इसमें भी कुछ अवेयरनेस क्रिएट की थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफ सी आर ए जिसे कहते हैं, और कॉमन सी ए ए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सीए
राइट्स हम सबको पता है, इट हैपेंड इन 2020-21। जी। काफ़ी लंबे समय से राइट्स चला, स्ट्राइक्स हुआ दिल्ली में, इंटायर दिल्ली, एंड इट वाज देयर, इट हैपेंड टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट regime। और सीएए सबको पता है कि इट वाज फॉर द माइनॉरिटी हम्म, फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हम्म, वहाँ पे माइनॉरिटीज लाइक हिंदू सिख हम्म, फ्रॉम अफगानिस्तान आर बीइंग परसिक्यूटेड, उनके साथ प्रताड़ना हुआ है। हम्म, मैंने खुद देखा है, क्योंकि हिंदू सिख रिफ्यूजी का भी केसलोड मैंने किया है, जब वो रिफ्यूजी स्टेटस यूएनएचसीआर में लेने आते थे हम्म, अफगानिस्तान से। मैंने करीब 50 से 60 परिवारों का रिफ्यूजी स्टेटस मैंने उनको दिया। उनका स्थिति वाकई में काफ़ी दयनीय था अफगानिस्तान में। उनके इंटरव्यू से मुझे पता चला कि एक परिवार पूरा जीवन एक गुरुद्वारा में काटा। ऐसा, अब हिंदू वहाँ पे बचे कम। हम्म, बहुत सारे परिवार हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों को पत्थर मारा जाता था, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, यहाँ तक सब्जी लेने नहीं जाते थे। बेसिकली एक सेक्लूडेड काइंड ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग। तो ये तो बहुत अच्छा कदम था भारत का, टू प्रोटेक्ट द हिंदू सिख्स फ्रॉम अफगानिस्तान। उसी समय regime चेंज भी हुआ इन अफगानिस्तान। सेम अप्लाइज टू बांग्लादेशी Hindus। हम्म, Every day we have witnessed that temples are being destroyed in Bangladesh. हम्म, Hindus are being persecuted. It is in news. It is in जी। all media. अब इस विषय में यूएन काम नहीं करती है। यूएन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करती है, ठीक है। बट उनको लगता है कि जो हिंदू सिख हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, और जो हिंदूज हैं फ्रॉम पाकिस्तान, और हम्म, जो हिंदूज हैं फ्रॉम बांग्लादेश, वो जो लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड है हम्म, ऑफ परसिक्यूशन, जो प्रताड़ना का एक, जो उनका एक यूएनएचसीआर का एक लेवल है, दैट डज जी। नॉट लीड टू दैट लेवल कि उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। तो मेरा उसमें ध्यान इसलिए आकृष्ट हुआ कि जो पूरा इकोसिस्टम है, दैट वाज वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओके। सीएए के आड़ में। हम्म, और पूरा दिल्ली का राइट्स में हु वर इन्वॉल्व, these Rohingyas were involved. These Rohingyas were called from Rohingya settling places in Delhi from हम्म, UP. They were paid to sit in the rights for so many days, especially from Jamia and Okhla. Who was हम्म, funding them? There are NGOs, I don't want to name them. Government no, and they have already taken action. One name I will take, it is an international organization called as Amnesty International. हम्म, There are also many elite lawyers club who are ruling Supreme Court, who represented, who opposed the CAA. They are also part of the ecosystem. They paid money, they funded them to become the part of these rights. So that this was happening in the same time, yes, उसी समय में हो रहा था। तो हम्म, सीए के प्रोटेस्ट में भी मैंने सरकार को बताया कि हु आर दिस पीपल इन्वॉल्व। हम्म, आई सबमिटेड माई डॉसियर, आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स, है ना। इवन आई वेंट अहेड कि मैंने यूएन को भी लिखा चिट्ठी, इवन इन ओके। जेनेवा, एंड इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड हम्म, इन जेनेवा, कि आप परसिक्यूशन पे एक आप ये करते हैं सेलेक्टिव, आप आइडेंटिफिकेशन और रेफ्यूजी स्टेटस देते हैं, सेलेक्टिव बात करते हैं। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो जिसको मैं मुस्लिम बोलूंगा, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बट नॉट हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और फ्रॉम बांग्लादेश। आप कहते हैं कि उनका लेवल ऑफ प्रोसिक्यूशन इज नॉट दैट हाई दैट दे हम्म, शुड बी लेवल्ड एज अ रिफ्यूजी। आप देख लीजिए, कोई भी आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, इट इज जी। वेरी रेयर दैट एनी हिंदूज फ्रॉम these थ्री कंट्रीज हैव बीन गिवन रिफ्यूजी स्टेटस। तो भारत सरकार का जो पहल था, मैं उसको सपोर्ट किया, मैंने आर्टिकल लिखा। और इसी संबंध में जब इतने सारे बाधाओं को पार करके, विदाउट सपोर्ट, क्योंकि उस समय सीएए का रूल्स नहीं बना था, हम्म, तो काफी सारे जब पाकिस्तानी
हिंदू भारत आए, उनको वीजा भी नहीं सरकार दे रही थी। एक अलग रूट ईरान से जब काफी लोग आए, और डिफरेंट दे वर सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, इन जी दिल्ली, इन गुजरात, दिल्ली में भी थे। लेट्स एग्जांपल इन सिग्नेचर ब्रिज। तो जब वो हम्म, सेटल कर गए, तो एक तरफ आप बात करते हैं रोहिंग्या को कि इनको दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद द पीपल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21, और एक तरफ आप जो पाक हिंदू शरणार्थी हैं, उनको आप जमीन नहीं दे रहे हैं। दे वेर नॉट इवन गिवन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। कुछ एनजीओ हैं जो निस्वार्थ भावना से काम कर रही थी इनके लिए शुरू से, और आज तक भी काम कर रही है। उनके लिए अपने पैसों से उनको खाना देना, राशन देना, पढ़ाई के लिए खर्च करना, यूनिफॉर्म देना, ये कर रही थी। जी एक पर्टिकुलर एनजीओ ने मुझे अप्रोच किया कि भाई आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जाइए और कोर्ट से ऑर्डर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस समय का जो मौजूदा सरकार था दिल्ली में, वो सहयोग नहीं कर रहा था। दे वर अगेन सेलेक्टिव। वो रोहिंग्या के लिए तो काफी बड़े बड़े बात बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखबार में। उनके नेता हर जगह बात करते थे, लेकिन हिंदू शरणार्थी के लिए कोई नहीं बात करता था। तब मैंने एक पिटिशन फाइल किया इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, कि मेरा एक छोटा सा प्रेयर था कि उनको आप सोसाइटी में इंटीग्रेट होने का एक मौका दीजिए, और आप उनको जो बेसिक कम्युनिटीज है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ दीजिए। उसके बाद एक डायरेक्शन पास हुआ टू दैट पर्टिकुलर डीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जो सिग्नेचर ब्रिज एरिया में जो भी आता होगा डीएम। सो अल्टीमेटली दे वर गिवन इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर, क्लोथ एक्सेट्रा। बट अभी भी काफी दयनीय स्थिति है। अभी भी दिल्ली की सरकार रहे या भारत की सरकार रहे, अभी हिंदू शरणार्थी के लिए कुछ खास किया नहीं है। एंड दे आर लिविंग इन दिल्ली जस्ट ऑन द मर्सी ऑफ दीज एनजीओज हु आर वर्किंग सेल्फलेसली। जी मैं वही बात करना चाह रहा था कि कुछ इस बारे में बताइए कि अभी भी जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी शरणार्थी हैं भारत में, स्पेशली दिल्ली में आए हुए हैं, उनकी अभी भी क्या सिचुएशन है? कहाँ तक कितना सपोर्ट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और अभी किन इंटरवेंशंस की ज़रूरत है? सिचुएशन अभी वही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जिस जमीन पे वो रह रहे हैं वो खाली कराने के लिए। बहुत सारे एनजीओ जो इस विषय में काम कर रहे हैं, उन्होंने सरकार से बात की, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लगा हुआ है। ओके। ठीक है, लेकिन अभी भी भारत सरकार, ये हालांकि ये काम भारत सरकार का है, हुँ, क्योंकि सीए का कानून भारत सरकार ने लाया था। हुँ, अब राज्य सरकार का भी एक दायित्व है कि कम से कम ग्राउंड लेवल में ऐसी परेशानियां ना आए कि भैया उनको उस जमीन से ही उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए। दे हैव जी, ऑलरेडी सफर्ड, सो डोंट गिव मोर सफरेंस। और अब 12 साल के बाद आप उनको आप सिटीजनशिप देंगे, तो अभी भी वो जो उनको हक मिलना था, द वे दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद द पीपल ऑफ इंडिया, द हुँ, ट्रीटमेंट दे शुड गेट, दे आर नॉट गेटिंग इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इंटरवेंशंस। जी, इवन जो सुप्रीम कोर्ट भी है, उनका भी रवैया कुछ खास नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पिटिशंस फाइल्ड है, दो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दोस पिटिशंस, एंड इवन इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसमें मुझे नहीं मालूम है कि जो कोर्ट है एक क्लियर कट ऑर्डर देने में हिचकिचाती हुई है, जब सीएए का रूल्स अब आ चुका है। एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड स्टार्ट इंटीग्रेटिंग देम इन द इंडियन सोसाइटी फर्स्ट। दे शुड प्रोवाइड देम फ्री स्कूल। If हुँ, they can provide free school to others, other community हुँ, and other outsiders, for example रोहिंग्या are claiming that provide me with free education। एक पिटिशन भी अभी 2025 अभी जुलाई में फाइल हुआ है कि दे हुँ, शुड बी ट्रीटेड एट पार विथ इंडियन सिटीजनशिप। आप मुझे फ्री का एजुकेशन दीजिए, फ्री का खाना दीजिए, फ्री का पानी दीजिए। हुँ, तो ऐसा सिचुएशन में अभी भी पाक हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। उनका यहाँ पे कुछ जमीनी तौर पे कुछ सुधार हुआ नहीं है। एंड एवरी वर्क इज डन बाय दैट पर्टिकुलर एनजीओ, एंड आई थैंक दैट पर्टिकुलर एनजीओ विच इज वर्किंग सेल्फलेसली। जी। तो ये समझा जा सकता है कि जो पाक हिंदू शरणार्थी अभी हैं भारत में, स्पेशली दिल्ली में जो हैं, वो ज़्यादातर एनजीओज़ के सहारे ही चल रही हैं, बिल्कुल। और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, एजुकेशन, फूड, काम, बिज़नेस,
मतलब कोई जॉब हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, ये आई थिंक उनको नहीं मिल पा रही हैं। अभी भी वो आज भी दयनीय स्थिति में हैं। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए वो अभी भी काफी दूर है। वो तभी संभव है जब जितने भी भारत में सक्रिय हिंदू संगठन हैं, वो जी। जब एक होंगे और जो हिंदू इकोसिस्टम है वो एक होगा और उनके लिए बात करेगा। जैसे फॉर रोहिंग्यास, रोहिंग्यास के लिए आप देखेंगे कि उनका इकोसिस्टम कितना बड़ा है। जी। उनके साथ जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ लॉयर्स हैं, उनके साथ मीडिया है। elite lawyers and elite journalists are working day and night for them. हम्म, It is just an agenda, everyone knows, but at least उनके पास इकोसिस्टम तो है। हमारे जी। पास पाक हिंदू शरणार्थी या और भी हिंदू शरणार्थी, जैसे आप हिंदू सिख जो अफगानिस्तान से आए हैं, उनके लिए जितने भी हिंदू संगठन हैं वो अभी एक नहीं है और एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं। और सक्रिय तौर पे काम करना पड़ेगा और सरकार से आग्रह करना होगा कि आप जल्द से जल्द इस पे कुछ कार्य करें। आपने शायद भारत के आज के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो विच वी कैन से कि द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ द कंट्री, स्पेशली national security, from illegal migration, from CAA, FCRA, and then Pak Hindu refugees. You have worked almost on all these issues, और आपका मेन जो एक्टिविटी थी वो पिटीशन फाइल करना एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपने किया है। ऑल द वर्क्स जो मैंने बताया ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जैसे अभी जी। हमने बात किया रोहिंग्या का, उसके बाद सीएए का बात किया, पाक हिंदू रिफ्यूजीज के बारे में बात किया। अब मैं इस पे आता हूँ, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया, भारत सरकार ने लाया। बहुत जी। साधारण सा अमेंडमेंट था। भारत सरकार चाहती है कि जितने भी एनजीओस भारत में जो कार्य कर रहे हैं, वाकई में सही कार्य कर रहे हैं। एनजीओस आर वर्किंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क। सो एनजीओस का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत सरकार और गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट cannot reach to every people, every village, or every section of the people. So these NGOs assist the government of India to reach to every nook and corner of the country. अब होता क्या था कि उनको फंडिंग आती थी विदेशों से। अब जो फंडिंग आती थी वो दिल्ली में एक कुछ एनजीओस थे, उनको रिसीव होता था, और जो छोटे एनजीओस हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में काम करते थे उनको फनल करती थी। जी। लेकिन अब इसमें एक एजेंडा है कि जिस पर्पस से फंड आता था उसका उस पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन नहीं होता था। अगर पर्पस आया, अगर फंड आया कि भाई हमें असम में बाढ़ पीड़ितों पीड़ितों के लिए ये फंड देना है, विदेश से फंड आया, एक पर्टिकुलर एनजीओ जो दिल्ली में है, वो फंड जब असम पहुंचती थी तो वो फंड का यूटिलाइजेशन किसी और पर्पस से हो रहा है। सीए इज वन ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड एग्जाम्पल। उस समय कुछ एनजीओ को बहुत सारा फंड आया और ऑल द फंड्स वेर यूटिलाइज्ड टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट और फाइलिंग पिटिशंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट that goes against the interest of India. For example, funding the farmers' protest in India for so long, funding the CAA rights, filing petition in the Supreme Court against the government of India। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा कि चार धाम प्रोजेक्ट बनाए को जोड़ा जाए, जी। इस विषय में आई opposed the petition that challenged the amendment which was brought by the government of India in the Supreme Court along with the government of India। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स ऑफ दिस एनजीओस जो विदेशों से पैसा मंगवाती थी और गैर कानूनी कार्यों में लगाती थी, वो सारे एनजीओस के डिटेल्स हमारे डॉक्यूमेंट्स में था, हमारे पिटिशन में था, हमारा इंटरवेंशन पिटिशन में था सुप्रीम कोर्ट में। और जिसको भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश भी किया इन द सील्ड इनवेलप, और बताया कि सिंस इट इज सेंसिटिव इन नेचर
और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास रिपोर्ट है। They should, so that is why they filed in a sealed envelope all the details of all these NGOs who are involved in these anti-social elements activities। जी और सुप्रीम कोर्ट ने जो वो पिटिशन को चैलेंज किया था उसको खारिज किया और बताया कि जो अमेंडमेंट भारत सरकार ने लाया है उसमें कोई खामी नहीं है। और इनफैक्ट और भी डायरेक्शन पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सुन के बड़ा अच्छा लगा हमको। इतना डिटेल में समझ में आई कई सारी चीज़ें कि कैसे कई सारे इश्यूज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये रोहिंग्यास का जो मैटर है ये कितना डीपली देश में ये इन्वॉल्व हो चुके हैं और आज से नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी जनरली जब सुनते हैं कि मतलब हमारे यहाँ भी ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो बंगालीज हैं और वो हो सकता है कि उसमें से भी कई सारे रोहिंग्याज हों और वो उनका यही कहना रहता है कि अरे हम तो 47 से आए हैं। तो हमें भी लगता है कि अच्छा हाँ तो फिर ये मतलब वो इशू नहीं होना चाहिए इनके साथ, तो सिंपथी जगती है। तो आई थिंक ये पब्लिक में भी एक नैरेटिव होगा कि नहीं साहब हम तो 47 से आए हुए हैं, अब हमें क्यों भगाया जा रहा है, अब हमें क्यों निकाला जा रहा है। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी कितनी पुरानी है। नो, अगर आप कहते हैं कि दे आर फ्रॉम 47 जी। तो शो योर डॉक्यूमेंट्स, हम्म। है ना। अब हमारे पास तो डॉक्यूमेंट होगा ही, जी। आपके पास भी पेपर होगा, सबके पास पेपर होगा। डेफिनेटली। बट दे लैक डॉक्यूमेंट। और एक सिस्टम भी है इनके साथ जो फेक डॉक्यूमेंट बनाता है बिल्कुल। इनके लिए और इनको अपने एजेंडा में शामिल करता है। जी, जी। तो पंकज जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और आप जैसे कि एक पब्लिक सर्विस करते ही हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपकी इन एक्टिविटीज़ को या आपकी इन आर्टिकल्स को अगर पढ़ना हो या सुनना हो तो कहाँ जाया जा सकता है, किधर आपको सुना जा सकता है, या आपकी जो आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सुनना हो तो वो कहाँ पे सुना जाए, किधर देखा जाए? बहुत सारा काम जो मैंने किया है वो काफ़ी सेंसिटिव विषयों में काम किया है। जी। तो इसको मैंने पब्लिकली जो एक जगह है नहीं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ माय आर्टिकल्स। हम्म। अगर किसी को भी पढ़ना हो तो दे कैन सर्च माय नेम, दे कैन specifically look into a magazine organizer। A lot of my publications are in organizer, they can look into it। हम्म। अदरवाइज वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको बताऊंगा। बहुत सारा सेंसिटिव पेपर्स है, सेंसिटिव इश्यूज है, तो ये इतना भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि वो आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स फ्रॉम इकोसिस्टम। ऑब्वियसली नो, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, बट ये जो अवेयरनेस है जो आज हमने जैसे। अवेयरनेस माय गिविंग अवेयरनेस इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, बहुत सारा सब टॉपिक्स भी है रोहिंग्यास। जी, जी। एक ऐसा इशू नहीं है। अभी 2025 में आप देखिए कि नैरेटिव चेंज हो गया। नाउ दे डोंट वांट टू बी डिपोर्टेड। हम्म। अब सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर दे शुड बी डिपोर्टेड और नॉट। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इज इंटरफेयरिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम्म। दैट इज, और हमारा संविधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर। That court cannot interfere into the work of executive, court cannot interfere into the work of the government of India। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि they will decide whether they should be deported। So this is a new topic हम्म। what I am which I am trying to write। And if possible, if given a chance, I will also represent myself in the Supreme Court opposing that prayer of the petitioners। थैंक यू वेरी मच। एंड हम आपका अगर अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना हो तो आई थिंक आपसे ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं आप। बिल्कुल मैंने भी आपसे वहीं से कनेक्ट किया है, तो जी। आप वहाँ पे आपसे जुड़ सकते हैं। तो अब हम अपने इंटरव्यू के एक लास्ट लेग में आ रहे हैं जहाँ पे हम कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और फिर हम अपने इंटरव्यू के अंत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आई थिंक हमें कई सारे इंटरव्यू करने पड़ेंगे, फिर डिटेल में शायद बात करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हम जो है वी वुड लाइक टू टेक अ पॉज, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू नो योर धार्मिक इंक्लिनेशन, योर डे टू डे लाइफ। तो उसके उसको लेके कुछ मेरे क्विक क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक एक सेंटेंस में या वर्ड में उसका आंसर दे सकते हैं। एस्टिमेटेडली आपने कितने ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे अभी तक? मैं गीता पढ़ रहा हूँ और गीता तो काफ़ी एक बड़ा सार है, उसको सारा पढ़ना काफ़ी
मुश्किल है। जी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मैं पढ़ता रहूँ और उससे जो भी इन्फॉर्मेशन हो या नॉलेज हो अपने जीवन में उतारूँ जी। और लोगों को भी बताऊँ। हम महाभारत को, रामायण को इतिहास मानते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है। ये हमारा लिविंग हिस्ट्री रही है, जो हुआ है। तो इसमें कई सारे पात्र हैं, इनमें से कोई ऐसा पात्र जो आपको बहुत प्रेरित करता हो या विच यू लाइक द मोस्ट? मैं भगवान राम पे विश्वास करता हूँ और श्री कृष्णा पे। कोई ऐसा मंदिर जो आप बार बार जाना पसंद करते हैं? मैं महाकाल जाना पसंद करता हूँ और मुझे एक काफ़ी बताना मुश्किल है, लेकिन एक अनुभव मुझे मिलता है वहाँ पे अच्छा। कि ईश्वर है। जी। महादेव के साथ जो भी जुड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एक्सपीरियंस दे ही देते हैं। बिल्कुल। आपके तो अब समझ में आ गया कि महादेव ही आपके जो है इष्ट देवता होंगे, या जिनको आप सबसे ज्यादा पूछते होंगे। जी, इसलिए क्योंकि मैं आजकल ज्योतिर्लिंग भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम्म। तो 7 या 8 मैं विज़िट कर चुका हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे समय मिले जी। या फिर मैं दोनों काम को अलग रखा हूँ। अपना जो ये रोज़मर्रा का काम है, अपना जीवन जीवन जीने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जी। समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए जो भी अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मैंने एक अपने आप को मोटिवेशन दिया है हम्म। कि मुझे ईश्वर से जुड़ के रहना है और शिव के साथ रहना है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। तो टोटल तीर्थ यात्राएं कितनी हो गई होंगी आपकी अभी तक? गिनना तो मुश्किल है, लेकिन मैं साल में 3 से 4 तो करता ही हूँ। अगली प्लानिंग कहाँ की है आपकी? अगली प्लानिंग मुझे महाकाल मैं जाने का सोच रहा हूँ। अच्छा, बहुत मैं बढ़िया। महाकाल हो आया, अभी मैं बैजनाथ धाम झारखंड में भी गया अच्छा। और मैं दोबारा से महाकाल जाना चाह रहा हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। तो अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट लेग में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के युवाओं के लिए और जितने भी दुनिया भर में हिंदूज हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देश के युवाओं का मेरा एकमात्र संदेश है कि जीवन में एक संकल्प लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक संकल्प लें और उस संकल्प को करें। अगर आप देश का हर युवा एक-एक संकल्प लेगा, तो देश का उद्धार होगा। अगर मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मुझे पेड़ लगाना है, तो मैं उस संकल्प को करूँ। जी। अगर मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक संकल्प लेना है, जीवन मर्रा का जो भी काम है, प्रोफेशनल वर्क के अलावा कि मुझे गौ सेवा करना है, तो उस युवक को वो करना है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने भी युवा हैं या जितने जो भी लोग हैं भारत के, ये मोदी जी ने भी कहा था, जी। संकल्प सेवा से संकल्प और संकल्प से सेवा। जी। कि भारत के जितने भी लोग हैं सबको जीवन में एक संकल्प लेना होगा। अपने लिए तो लोग करते हैं, कम से कम देश के लिए, मातृभूमि के लिए, जन के लिए लोग करें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका संदेश है। और मुझे लगता है कि आप जैसे, जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं कि आप जैसे कई सारे भक्त हैं जो बिना संकल्प के ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि जिसकी सराहना जितनी की जाए वो कम है। उनको ढूंढना होगा, आपके जैसे लोग उनको ढूंढ पाएंगे जैसे आपने मुझे ढूंढा। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश ऐसी है कि हम एक-एक हिंदू को पकड़ के और खंगाल के लेकर आएँ कि वो क्या कर रहे हैं। जी। क्योंकि होता क्या है कि बोलने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन जैसे आपसे बात की थी तो आपका भी पहला इंप्रेशन था, अरे मैं कुछ नहीं करता या मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम जब बात करेंगे तो निकल कर आएँगी चीज़ें। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है कि इतने हमारे हिंदू कम्युनिटी में लोग इतने सरल हैं कि वो मतलब वो ये भी नहीं फ़ील करना चाहते कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बिल्कुल। सिस्टम में वो चेंज ला रहे हैं। यही मेरा आपके साथ भी रहा। और आपका जो अंतिम संदेश है मुझे बहुत अच्छा लगा कि संकल्प शायद सुन के कुछ हमारे भक्त भी ज़रूर संकल्प लेंगे, और जो है कहीं न कहीं वो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मिसाल बनेंगे और एक वैल्यू एडिशन ज़रूर करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
पंकज जी हमारे पॉडकास्ट पे आने का, व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट को सुनने का। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक हम एक और भक्त के साथ आते हैं फिर मिलते हैं। धन्यवाद।